कर्मों का फल सबको मिलता है वो भाई दोनों ही। मारा से भागे। चलिए ठीक है, Let's get started. जी जी। जय जिनेन्द्र एवरीबॉडी, प्लीज जॉइन योर हैंड्स फॉर नमोकार मंत्र। ओम नमो अरिहंताणम्, ओम नमो सिद्धाणम्, ओम आयर्याणम्, ओम नमो उवज्झायाणम्, नमो सप्पसाहुणम्, ईसो पंचनमोकारो सप्पपावपणासनो, मंगलाणं च सवेसिं पद्मं हवै मंगलम्, पद्मं हवै मंगलम्। अहिंसा के पुजारी त्रिभुवननाथ भगवान महावीर के चरणों में कोटिशः वंदन। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय पूज्यवर गुरुवर श्री अरुण विजय जी महाराज साहेब के चरणों में विधिवत त्रिवार वंदना करती हूँ। प्लीज वेलकम आवर जैना प्रेसिडेंट मिस्टर महेश जी वाधर। अपने प्रखर व्यक्तित्व और भव्य भावना लिए आपके सामने महेश जी वाधर। Thank you, Savita ji. ओम श्री जिनेश्वर भगवते नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। प्रणाम जय जिनेन्द्र। मध्याह्न वंदना गुरुदेव। इस मंच पर उपस्थित आध्यात्म साधना के शिखर पुरुष, जैन संस्कृति के महान सूर्य चंद्रमा के समान ओजस्वी तेजस्वी परम पूज्य पन्यास श्री अरुण विजय जी महाराज साहेब को चरणों में कोटि कोटि वंदन। मैं इस अवसर पर जैना की ओर से यहाँ उपस्थित सभी साधर्मिक भाई बहनों का अभिवादन सहित स्वागत करता हूँ। आज का इस कार्यक्रम को आयोजित करने में स्वयं सेवक श्री विजय भाई शाह, धीमन वोरा और सविता जी जैन को हम पूरा जैन समाज की ओर से धन्यवाद करते हैं। We are blessed to have our second lecture on Karma philosophy by Param Pujya Panyas Dr. Arun Vijay Ji Maharaj Sahib. For those who have missed the first lecture, Gurudev laid out the foundations of why there is a need for karma theory and why we should know it. Gurudev started describing the vision of the universe as revealed by Tirthankara through their Yavarnan. This vision consisted of the structure of the lokas and the different organizations of four gatis of Manushya, Swarga, Nark, and Tiryanch, as well as the organization of Jivas in terms of Nigod, 1, 2, 3, 4, and 5 senses, karmic Jivas in the four gatis, and non-karmic Jivas in Moksha. He pointed out that we see diversity everywhere in the world, in many, many different dimensions. Questions like why is everyone not happy? Why some suffer more than others? Why do twins have differences? Why are some humans born with physical or mental defects and others are not? Why all jivas in the same gati are different?
Where do these differences arise from? If there was a creator God who was fair, these differences should not arise again and again. As we go further in this lecture series, Gurudev will reveal the secrets of karma theory and how it affects all of us, whether we believe it or not. We pray that this guidance will lead us to increased awareness, helping us direct our efforts to change our thoughts, words, and actions to follow the same path and achieve the same state of moksha that Mahavir Bhagwan achieved. Before I invite Vijay Bhai Shah to conduct Guru Vandana, I would like to invite participants here. If any one of you is interested to take the Guru Vandana Lab in next session on September 25th, then please let us have your name and your contact information in the chat here. This will be first come, first serve basis. Please make sure that you are very much familiar with the Guru Vandana Vidhi. Thank you all. Vijay Bhai, the floor is yours for Guru Vandana Vidhi. Jai Jinendra, Mattena Vandami Gurudev. इच्छामी कमासमणो वंदी उजवणी जाय निस्सिही आय मत्थ एण वंदामी इच्छामी कमासमणो वंदी उजवणी जाय निस्सिही आय मत्थ एण वंदामी इच्छकार सुहराई सुख तप शरीर निराबाध सुख संयम जात्रा निर्वहो छोजी स्वामी साता छेजी हाथ पाणी नो लाभ देजो जी इच्छामी खमासमणो वंदी जवणी जाय निस्सिही आय मत्थ एण वंदामी इच्छा कारणे संदिसो भगवन अबुठ्ठियोमी अभियंतर रायम खामेवु इच्छम खामेमी रायम जं किंची अपत्यम परिपत्यम भत्ते पाणे विनये वयावच्चे आलावे संलावे उचासणे समासणे अंतर भाषाये उरी भाषाये जं किंची मज्ज विनय परिहीणम सुहम वा बाहेरम वा तुभ्ये जानाह अहम न जानामि तस्य मिच्छामि दुक्कडम मत्थ एण वंदामि साहेब दुख सातामा इच्छामि खमासमणो वंदिउ जावणी जाय निस्सिही आय मत्थ एण वंदामि इच्छा कारण संदिसो भगवन वायना संदिसो इच्छम इच्छामि खमासमणो वंदिओ जावणी जाय निस्सिही आय मत्थ एण वंदामि इच्छा कारण संदिसो भगवन वायना लेशो इच्छम इच्छामि खमासमणो वंदेऊ जावणी जाय निस्सिही आय मत्थ एण वंदामि इच्छकारी भगवन पसाय करी वायना प्रसाद करासो जी नमारि हंताणं नमः सिद्धाणं नमायरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वसारणं येषु पञ्चनङ्कारो सर्वपावपणासनो मङ्गलानं च सर्वेषु परमं हवै मङ्गलम् जय जगजीवजोनि वियानो जगगुरु जगानन्दो जगनामो जगबन्धो जय जगप्रियामहो जय सुयाण भगवो तीर्थयराणम् अपचिमो जय जय गुरुलोगाणां जय महप्पा महा सर्वारिष्ट प्रणशाय
सर्वाभीष्टार्थदायिनी सर्वलब्धि निधाना गौतम स्वामिने नमः। विश्वधर्मा स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। थर्ड वंदना में धर्म लाभ सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। कर्म के बारे में हम विचार विमर्श कर रहे हैं। लास्ट क्लास के अंदर थोड़ी सी भूमिका हमने इंट्रोडक्शन की जो की थी, उसके अंदर आपको ये ख्याल आया होगा कि सारे संसार की विचित्रता, विषमता, विविधता, विद्रूपता, विपरीतता, इन सब का आखिर कारण क्या हो सकता है। हम किसको कारण समझ करके चले, कैसा कारण बनाए। तो यहाँ पर जो है दो प्रकार की विचारधारा सामने आ रही था। अब इस विचारधारा के अंदर आपको ये देखना है कि दो विचारधारा के अंदर सबसे बड़ी मुख्य विचारधारा चल रही है ईश्वरवाद की, और दूसरी विचारधारा चल रही है कर्मवाद। अब ये दोनों जो है किस प्रकार की कैसी विचारधारा है, किसके अंदर किसकी कैसी मान्यता है। तो जगत के जितने धर्म and all the different schools of philosophies, it is already divided in these two forms. अब इसमें आप देखेंगे तो जितने मैक्सिमम सब एक तरफ है वो है ईश्वरवादी धर्म, और कर्मवाद को मानने वाला सिर्फ एक अकेला जैन दर्शन है। अब ये जैन धर्म है। जैसे जिस प्रकार की कर्म की विचारधारा जैन धर्म ने, जैन दर्शन ने प्रस्तुत की है, वैसी दुनिया का एक भी धर्म and not the separate individual different schools of philosophy, no one is ready to accept it. हम दोनों की बात यहाँ पर कर रहे हैं। आपको ये समझना है किसके बारे में लास्ट टाइम जो है ने डिस्कशन किया था। ये संसार की विचित्रता, विपरीतता, विषमता, समानता क्यों नहीं है, और विरूपता कैसी है, विपरीत भाव कैसा है, ये सारी परिस्थितियों का मुख्य कारण जैन दर्शन ने जिसको कर्म संज्ञा का नाम दिया है, उसको दूसरे धर्मों ने ईश्वरवाद कह दिया। अब ईश्वरवादी जो व्यवस्था है, मतलब ईश्वर को मान करके वैसी व्यवस्था करने वाले, अब ये सब जो जिस प्रकार के हैं, इसके अंदर दुनिया के सब धर्म आ गए। हिंदू धर्म भी इसमें है, क्रिश्चियन धर्म भी इसमें है, इस्लाम धर्म भी है, ज्यूइश धर्म भी है, और ये सब धर्म अपनी तरफ से इस प्रकार की ऐसी विचारधारा रखते हैं। Only the God is supreme power, the God is creator, God is reason organizer, God is the destroyer, God is the sustainer, God is the manager, God is director. Everything for the God is only the one reason for all. अब एकमात्र सिर्फ ईश्वर ही सबके कारणीभूत निमित्त है। अगर संसार में जन्म मरण की व्यवस्था है तो ईश्वर कारणीभूत है। अगर संसार के जीवों के लिए सुख दुख की व्यवस्था है तो ईश्वर कारणीभूत है। गति आगति का कारण भी ईश्वर ही बनता है। अब इन सब के बारे में जहां पर इन्होंने सिर्फ अकेले ईश्वर को कारण बताया, वहां पर भगवान महावीर स्वामी सिर्फ जीवों के सबके अपने अपने कर्म को कारण कह रहे हैं। वो ईश्वर के हाथ में कुछ भी नहीं। इनका यहाँ कहना है ईश्वरवादी ग्रुप के अंदर जो भी है, they say for each and everything for the happiness and miseries of the all the living beings, only the God is the basic reason for all. Except the God, nothing can be possible.
विदाउट द गॉड यू सी नथिंग इज पॉसिबल, ये इनका कहना है। सुख भी देगा तो ईश्वर ही देगा, दुख भी देगा तो ईश्वर ही देगा, सृष्टि का सर्जन भी करेगा तो ईश्वर ही करेगा, सृष्टि की व्यवस्था करेगा तो भी ईश्वर ही करेगा, सृष्टि का संचालन करेगा तो भी ईश्वर ही करेगा, और सृष्टि का विनाश भी करेगा तो ईश्वर ही करेगा। ईश्वर के सिवाय कोई नहीं है। और जैन धर्म एक अकेला सर्व का निषेध करते हुए ना कह रहे। जैन धर्म की स्पष्ट मान्यता, स्थिर मान्यता है, नॉट ए सिंगल ईश्वर, द गॉड विच इज कॉज फॉर द होल यूनिवर्स, द गॉड इज नॉट द क्रिएटर एट ऑल, God is not the destroyer at all, and God is not the sustainer and not the organizer at all. So there is no question about the God. God is not giving you the happiness and misery, nothing, not at all. अब वो अपने अपने कर्म के कारण है। जिन जीवों के अशुभ कर्म जैसे होगा उसके उदय के कारण दुखी होंगे, जिन जीवों के अगर वैसे शुभ प्लस पॉइंट के पुण्य कर्म होंगे वो जरूर सुखी होंगे, दो राय नहीं इसमें। लेकिन अब संसार की सारी व्यवस्था जो सुख दुख के साथ जोड़ करके देखी गई है, अब ये कर्म फल के साथ जो देखी गई, तो महावीर ने कहा कि भाई किसी को फल देने की आवश्यकता नहीं है। अगर जिस जीव ने अशुभ पाप कर्म किए हैं उदय में आएंगे, वो अपने आप दुखी होगा। किसी को दुख देने की जरूर नहीं है, किसी को सुख देने की कोई जरूर नहीं है। कोई सुख दाता नहीं है, कोई दुख दाता नहीं है। लेकिन अब दुनिया में सबने अपनी अपनी व्यवस्था की। इन्होंने एक ईश्वर की ऐसी व्यवस्था कर दी, उसको विघ्नहर्ता नाम दे दिया था। अब इसका क्या करना? अपने अपने तरीके से ये व्यवस्था बैठा करके सभी धर्म जगत के अंदर चल तो रहे हैं, लेकिन इन सब के पीछे एकमात्र कारणीभूत अब ईश्वरवादी पक्ष में दूसरे और भी आ रहे, जो ईश्वर के साथ साथ कारक के रूप में और भी किसी को मानते हुए दूसरों को भी बता रहे, दूसरों को भी कह रहे हैं। तो वो भी एक व्यवस्था, एक बता तो रहे हैं, कह रहे हैं। अब उसके अंदर, संसार के अंदर, अब जीवों के सुख दुख की बात आप करिए। अब जीवों के लिए जो भी आप जिस किसी प्रकार की बात करेंगे, तो जैसे एक पक्ष ने ईश्वर को बताया है, अब दूसरा पक्ष जो है ग्रहों को बताता है, तीसरा पक्ष जो है वो अन्य देवी देवताओं को बताता है, कोई चौथा पक्ष एक और भी है और वो किसी ने वास्तु को भी बताया है, पांचवा पक्ष एक और भी है जिसके अंदर this is the science is also giving all type of instruments. Due to that, the people can get the happiness and miseries according to the sciences also. Science, the philosophy of science, I am talking about that. There is a different philosophy of science also. अब ये सब ने अपनी तरफ से अलग अलग माना है। In astrological system, they say that grahas are the reason for all the living beings, for the happiness and misery. If there will be the Shani, if there will be the Rahu and Ketu, if there will be the Mangal, ये सब जो है वो अपने अपनी तरफ से जीवों को सुख दुख देने के कारणीभूत निमित्त बनते हैं। Some of them they are saying that heavenly deities, the god and goddess is also the reason for that. कुछ देवी देवता हैं जो वो भी है संसार के जीवों के सुख दुख के कारण बन रहे हैं, उनके हाथ में व्यवस्था है, वो दे रहे हैं, उनके कारण हो रहा है। देखिए, ईश्वर एक अलग व्यवस्था है और देवी देवता एक अलग व्यवस्था है। ये व्यवस्था बिल्कुल अलग चल रही है, ये व्यवस्था बिल्कुल अलग ही चल रही है। दोनों अपनी अपनी तरफ से बात कर रहे हैं। और कुछ लोगों ने वास्तु को बना दिया
नहीं नहीं, आप आपकी वास्तु चेंज कर लो, हो जाएगी सेटिंग, डायरेक्शन बदल दो, आप क्या हो जाएंगे. Because of that, behind the Vastu, they are believing that the different type of deities, so those who are in the different directions, some of them those who are in the north, some of them those who are in the south, they are just sitting in the south, they are giving you this type of misery. If your house having the north direction full and your gate is in the north direction, then you will be get everything you say, all happiness, wellness and everything, health and wealth also. But ये सब उनकी मान्यता है. What the philosophy of science says that if we will give all types of equipments and instruments to the living being, you see, they will feel the happiness and miseries. अब वो उनका विज्ञानवादियों का कहना अपनी तरह से है. अब इन सब के अंदर जैन धर्म बिल्कुल अपनी अलग ही बात कर रहा है. Only the karma is reason for all, not all these things at all. अब जिन लोगों ने ग्रह आदि की बात की, जिन लोगों ने ईश्वर आदि की बात की, तो जैन धर्म के हिसाब से महावीर ने कहा है पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, वेद्रिय, तेन्द्रिय, चौरेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय, देवता, नारकी, तिर्यंच, पशु, पक्षी, मनुष्य, संसार की समस्त जीव राशियां जो है उनका क्या कैसे व्यवस्था होगी साहब. क्योंकि हिंदू धर्म के अंदर ईश्वर के को पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति में वो जीव मानते ही नहीं. Even in Christianity, they say only the human being have the life, not any other. All the animals and creatures, they have no life at all. The same thing repeating by the Islam also. They say according to the Quran, only the human being have life, no any others have life. अब इसका क्या करना था? ये ग्रहवादी आएंगे तो कहेंगे भी in planetary system there are the different type of grahas. Before the 100 of years they were saying only the 9 grahas are existing. Nowadays they think that Pluto and Herschel and Venus and some other grahas are already added in that. So there are also the reason for that, you see. The peoples are having suffering, no doubt. But लेकिन आप ये कभी सोचा है आपने मनुष्य के सिवाय पशु पक्षी की जन्म कुंडली बनेगी क्या? One fish, it is taking the birth in the ocean, you see. How it is possible to make the janam kundli for that? Not possible at all. One pig is delivering 9 to 10 babies at a time. Even one mouse is also delivering 2 to 3 or 4, 5 babies at a time. Even the dog, you see, also delivering 7, 8 babies at a time. अब सबका सुख दुख सरीखा होगा क्या? Even in human being also we are looking that 2 babies, twins are delivering, 3 babies are also delivering. The same time of the twins, you see, 2 babies, those who are getting the life birth, you see, same life, same sukh dukh, same सब कुछ होगा क्या उनके लिए? It's never possible at all. महावीर तो ना कह रहे हैं, न तो कोई ग्रहों के हिसाब से पूरी दुनिया चल सकती है. और एक आगे का प्रश्न थोड़ा सा विचार करिए आप, भाई ग्रह खुद भी तो देवी देवता है कि नहीं? उनके कर्मों का क्या? अगर मंगल किसी कन्या की शादी होने ही नहीं देगा तो फिर उसका पाप किसको लगेगा? शनि सबको दुखी करेगा तो उसका पाप किसको लगेगा? राहु केतु सबको लड़ाएंगे झगड़ाएंगे तो उसका पाप किसको लगेगा? वो खुद भी पाप कर्म के भागीदार बनेंगे कि नहीं बनेंगे? ईश्वर के बारे में भी सेम क्वेश्चन आएगा कि ईश्वर अगर जगत को दुखी करता है, दुख देता है, सुख देता है, तो क्या उनको भी पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? Then the Hindu religion, according to the Ramayana and Mahabharata and Vedas, they are saying the God is coming only for doing the Leela. For the Leela is coming. So there is no question about the God. There is no pap and there is no punya. Nothing is related with the God. God is above them all. ये उनकी अपनी मान्यता वो स्वीकार करते हैं कि ईश्वर सर्वोपरि है, उनको कोई पाप पुण्य से कोई संबंध नहीं है, वो कुछ भी नहीं करते ऐसा. चलो अब ये जो देवी देवता है, where they are, what they are doing, why they are giving the miseries to some people and why they are giving the happiness to the some people, why they taking this type of अब ये क्यों कर रहे हैं?
अब क्या ये देवी देवता खुद वैसे नहीं है? क्या ये देवी देवता ये भी अपनी तरफ से जीव मनुष्य, ये जीव नहीं है? इनको सबका पाप कर्म लगेगा कि नहीं लगेगा? ये भी कर्म बांधेंगे कि नहीं बांधेंगे? फिर इनको इनका क्या होगा? अब ये कोई विचार सबको करना तो चाहिए कि नहीं था? अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा? साइंस इज गिविंग द गुड इक्विपमेंट्स एंड डिवाइसेस टू द ऑल, लेकिन फिर भी लोग मर रहे हैं। साइंस ने ला करके आपको बहुत अच्छे इंस्ट्रूमेंट सैकड़ों दे दिए शायद, अब इसका क्या करना? वेंटिलेटर बना के दे दिया। वेंटिलेटर एक ऐसा आर्टिफिशियल डिवाइस है कि वो आपके हार्ट को पंपिंग करता रहे, लेकिन क्या उसके ऊपर, वेंटिलेटर के ऊपर इंसान 100 साल तक जीता रहेगा? मरता ही नहीं है क्या? और ये कोरोना के अंदर तो आपने प्रत्यक्ष देख लिया है। वेंटिलेटर कंटिन्यू कांस्टेंट होते हुए, ऑक्सीजन सप्लाई कांस्टेंट होते हुए भी लोग मर तो रहे हैं। ऐसी स्थिति के अंदर ये सारी जो क्रिया व्यवस्था चल रही है, तो इनमें से तो एक भी व्यवस्था कोई 100% परफेक्ट नहीं बैठ रही है। इनमें एक भी सिस्टम नहीं है कि जो 100% परफेक्ट बैठे। तो यहाँ पर महावीर स्वामी ने एक व्यवस्था और विचार करने के लिए दी है, और उसका नाम हम यहाँ पर जो देख रहे हैं वो ये है कि एक 5 जो है, we are talking about the reasons of the whole universe, say for the miseries and happiness and everything which is happening in this whole world. So what are the reasons? What type of the reasons? So यहाँ पर महावीर ने जैन धर्म के अंदर पंच समवायी कारण, पंच it is for 5 figure it is, and समवाय in the sense group of reasons. Some group of reasons, not only the one reason, but there are some different reasons. So they are using the word you say pancha samavayi karan. One of them is only the time. ये जो है काल भी एक कारणीभूत निमित्त है, ऐसा कहना है। अब दूसरे के अंदर जो है वो नेचर है, ये है आपका स्वभाव भी कारणीभूत बनता है। तीसरा यहाँ पर जो ऐसा एक कारणीभूत दिया कि नियति जो है, नियति का अर्थ यहाँ पर डेस्टिनी जो है, जिसको हम भवितव्यता भी कहते हैं। एंड फोर्थ वन इज जो है वो जो है एक कर्म कारणीभूत है, पास्ट कर्म जो है, और फिफ्थ वन जो है वो एफर्ट है। हाँ जी, ये है शास्त्र वार्ता समुच्चय ग्रंथ के अंदर हरिभद्र सूरी महाराज ने इन पांचों के ऊपर बहुत डिटेल में डिस्क्रिप्शन दिया है। अब आप ये देख रहे हैं कब कौन किसके साथ जुड़ा हुआ, कितने प्रमाण में, कब ये कौन किसके साथ जुड़ता है, कब ये किसके साथ जुड़ेगा, और कब ये किसके साथ जुड़ेगा, कब आपका काल इसके साथ जुड़ करके ज्यादा एफर्ट कर दे, कल आपको जो है ये इस तरह से इन पूरे पांचों को जोड़ करके समवायी कारण। See that these are my hand and all these 5 fingers are, but such 5 fingers when we are combining is, कभी तो हम पांचों अंगुलियों से काम लेते हैं, कभी एक छोड़कर 4 से ले लेते हैं, कभी 2 छोड़कर 3 से ले लेते, कभी राइटिंग करते हैं तो 5 all the 5 fingers are useful to write, or some of them are right. We are writing with the 3 fingers already.
with the thumbs. Some of them people, those who are not using the thumb, those who are using only the 2 fingers. Some of them, those who are using the 3 fingers and 4 fingers or 5, like this. All the 5 reasons. पांचों कारण कभी एक साथ में होते हैं या कभी कोई नहीं भी होता है और कोई ज्यादा होते हैं। 5 में से कभी 4 का प्रमाण रहेगा तो 1 कम रहेगा, दूसरे 4 ज्यादा रहेंगे। हो सकता है 5 में से कभी आपका 1 ही इम्पोर्टेंट रहेगा, दूसरे 4 गौण रहेंगे। हो सकता है कभी 2 इम्पोर्टेंट रहेंगे और तीसरे गौण रहेंगे। मतलब परसेंटेज के अंदर अब किसको कितने प्रमाण में कम ज्यादा के हिसाब से, लेकिन कार्य होना है, कार्य होता है। अब वो कार्य जिस प्रकार का जो भी है, जन्म का है, मरण का है, गति का है, गत्यंतर का है, आना जाना है, सुख का है, दुख का है, या संसार के सब कारणों की बात करें तो इनमें से आप जो देख रहे हैं ये थ्योरी हमको समझाई गई है। अब ऐसा है महेश भाई कि ये हम थ्योरी एक महीने तक एक्सप्लेन करते हैं, but in this series we have the limitations of the classes, you see. So I have to describe within only the half of the classes because it is not possible to describe in the 1 month, you see. अब ये आपको देखना है कि 5 समवाय द ग्रुप ऑफ रीजंस के अंदर, अब जैसे हमने यहाँ पर सुख दुख की बात कर ली, तो क्या आप टाइम के हिसाब से सुखी दुखी होंगे, क्या आप अपने नेचर से सुखी दुखी होंगे? नेचर ऑफ 2 टाइप, पर्सनल नेचर एंड द नेचर ऑफ द होल यूनिवर्स, यू सी, दिस इज ऑफ द 2 टाइप। सो अपने पर्सनल नेचर का भी विचार करें या नेचर के अंदर अन्य का, जगत का, सृष्टि का, अब सबके नेचर का विचार करें सब। तो यहाँ पर नियति आपकी पर्सनल भी हो सकती है, डेस्टिनी, या द डेस्टिनी ऑफ टाइम, द डेस्टिनी ऑफ फील्ड, द डेस्टिनी ऑफ एरिया, डेस्टिनी ऑफ, जिस तरह से देखेंगे। एंड द पास्ट कर्म तो हमारे ही होते हैं, जीवों के ही होते हैं। जिन जीवों ने जैसे कर्म उपार्जन किए हैं उनके ही अपने कर्म, लेकिन अब वो काल के साथ जोड़ करके सेटिंग बैठाइए। कर्म तो आपके हैं लेकिन उदय का काल परिपक्व नहीं हुआ है तो आप दुखी नहीं होंगे साहब। अभी भी हमारे अंदर स्टॉक में, सत्ता में अशुभ कर्म ऐसे भी पड़े हैं, लेकिन आज कोई तकलीफ नहीं हो रही है क्योंकि वो अभी स्टॉक में सोते हुए पड़े हुए सुसुप्त अवस्था में है। अभी उन कर्मों का उदय काल नहीं आया है। जब उदय नहीं हुआ है तो कर्म होते हुए भी आपको दुखी नहीं करेंगे, ये फर्क पड़ रहा है। अब ये बात समझ में। अब यहाँ पर क्या है, एफर्ट, आपका प्रबल पुरुषार्थ कब कितना है ये आपको देखना है। अगर आपका पुरुषार्थ परसेंटेज में कर्म से ज्यादा है तो आप थोड़े से कर्म के निमित्त को लेकर भी अपने प्रबल पुरुषार्थ से चला लेंगे। किसी को 100 डिग्री का टेम्परेचर है, वो अपने अशुभ कर्म के कारण, बट स्टिल ही इज गोइंग टू ऑफिस, still he is doing his business, still he is doing his job and everything, but still he is suffering from that, no doubt. तो पूर्व कर्म उसका कितना है, 10-20% ही है, लेकिन एफर्ट उसका बहुत ज्यादा है तो उसने रिजल्ट अच्छा लाया है। अब इसके अंदर कब आपके साथ डेस्टिनी क्या है ये बता। इफ यू आर फीमेल एंड इफ यू आर मेल, अब कोई डेस्टिनी आपके लिए कारणीभूत नहीं है। अब आप मेल है या फीमेल है तो किसको कारण देंगे साहब? ये हमारे कर्म है। जिस कर्म, पर्टिकुलर कर्म के कारण कोई मेल बनता है, पर्टिकुलर कर्म के कारण कोई फीमेल बनते बाय बर्थ। हम माता के गर्भ में ही अपना शरीर और सब कुछ बना करके आए हैं साहब। लेकिन अब कोई कहे कि आई वांट टू चेंज माय सेक्स फ्रॉम मेल टू फीमेल, otherwise some of them they will say that I want to change my sex from female to male. अब वो अपनी तरफ से जो अपनी बुद्धि का उपयोग करे, अब उस हिसाब से करे न करे, कैसे करे वो जाने। लेकिन ये आप अपनी प्रकृति को किस तरह से बदले,
द नेचर, अब नेचर किसके साथ, एनवायरमेंट भी नेचर है। पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति के सबका भी एक नेचर भी वो अलग है। एंड माय पर्सनल नेचर इज आल्सो द डिफरेंट नेचर। घणी वखत આપણે આપણા પોતાના સ્વભાવના કારણે પણ દુખી થઈએ છીએ કે નહીં, અને ઘણી વખત પારકાના સ્વભાવના કારણે પણ દુખી થાય કે નહીં। માં દીકરાના સ્વભાવના કારણે દુખી છે, પત્ની પતિ के स्वभाव के कारण दुखी है, पति पत्नी के स्वभाव के कारण दुखी है। अब ये तो संसार में रहना ही रहना है। अब ऐसी स्थिति में किसी को समझाने जाओ तो वाइफ इज सेइंग दैट माय नेचर इज गुड बट माय हस्बैंड्स नेचर इज एब्सोल्युटली थर्ड। अब उसका क्या करना, कोई भी अपना नेचर तो खराब बताएगा ही नहीं था, सब दूसरों के नेचर को खराब बताएंगे था, और फिर वो दूसरों के नेचर को सुधारने की बात करेंगे, अपना नेचर सुधारने की कोई बात ही नहीं करेंगे था। तो व्यक्ति किस कारण सुखी या दुखी है ये देखना है आपको। संसार की व्यवस्था है, अब ये व्यवस्था सारी कर्म के कारण है कि कैसी है, तो उसमें बीच में काल जो है वो टाइम फैक्टर कैसे बीच में जुड़ा। When the ladies, you see the girl when she was not married but she was at the mother's home, you see, she was saying that my nature is okay, very fine, you see. But after marriage, when she go to the another place, you see, and with that another family when she is joining, then the people say that we are unhappy only due to this wife. Some of the people say no, she is really very good nature. अब संसार में स्वभाव क्या कारणीभूत है, क्यों कारणीभूत निमित्त है, अब ये सबका अपना अपना नेचर है सर। अब इसके हिसाब से संसार के सुख दुख की व्यवस्था कैसे बैठती है। The very first I started with the Ishwarvad and Karmavad. Another then I started with the 5 other reasons. Now I am talking about the 5 समवायी कारण। इन 5 समवायी कारणों से अब ये सारी थियोरी डिफरेंट विषम थियोरी है सर। आप किसको इम्पोर्टेंट दे रहे हैं, किसको ज्यादा मान रहे हैं, कौन किसको। Now our duty is to find out that which is the ultimate truth. Where is the ultimate truth? अब अल्टीमेट ट्रुथ को आप किसके साथ कनेक्टेड करेंगे सर। महावीर ये कह रहे हैं कि आपका कर्म अगर कारणीभूत है then 50% mark with your past karma, 20% mark with your effort, purusharth, but the 5%, 10% other also connecting with that. Everything is ready, but you must change your nature. If there is a rainy season, the rain is coming good. You have the farm. You are in this farm, you see, you can grow the crops also. But if you are not doing that much effort, there will be crop will not come at all. You see. But still there is a rainy season, and you have your own good farm also. The mud is also having the good time of that. But the person, if he will not do any effort, he can't do anything. अब आप क्या करेंगे सर। अब सेकंड केस के अंदर the person having a good nature is doing very good, you see, very well, no doubt. Past karma भी अच्छा है, but according to the destiny, the heavy rains. Due to the heavy rains, everything comes in the flood, and in this flood it just vanishes out. तो ये भी तो कारणीभूत होता है। अब आपका कर्म प्रबल था कि यहाँ पर ये, अब जब flood which comes in the river, you see, अब वहां पर thousands and lakhs of people, those who are just living on the shore of the river, अब उसमें तो किसका कारणीभूत करेंगे आप। लाखों लोग इफेक्टेड हो जाते हैं, लाखों लोग अफेक्टेड हो जाते हैं, तब आप क्या किसको कारण देंगे सर। अब कब आप टाइम बदल देंगे। when the rainy season will come, sometimes the winter season will come, sometimes the summer season will come, you see, the time will change. अब चेंज होते हुए इस टाइम के साथ कब कोई किसमें सुख मानता है, कोई किसमें सुख मानता है। किसी को लगता है कि नो विंटर सीजन इज रियली गुड फॉर मी, सम ऑफ द पीपल से नो रेनी सीजन इज रियली गुड फॉर मी। अब ये सब अलग अलग तरीके से, अलग अलग रीत से सब अपना अपना कहेंगे। हम किसके साथ जुड़े,
happiness and misery, it is not fixed with the time, it is not fixed with your effort, but sometimes it is fixed with your karma. अब कर्म किस प्रकार के कैसे हैं, अब वो कर्म आपके शुभ है, अब वो कर्म आपके अशुभ है, तो अब ये कर्म किसके साथ रहेंगे, कर्म कौन रखता है, हु इज द अकाउंटेबल फॉर दैट, यू से कर्म किसके अकाउंट में है, आप करो और ईश्वर लिखे, इट इज नॉट पॉसिबल, आप करो और दूसरा कोई लिखे, इज इट पॉसिबल और नॉट, मैं खुद करूं और मैं खुद ही अपने कर्म लिखूं तो मेरे ऊपर डिपेंड है कि और किसी के ऊपर है। फिर आप बोलेंगे नहीं नहीं कर्म आप करो लेकिन तो कोई दूसरा थर्ड एजेंसी वही कारणीभूत है, ऐसा भी आप सोचेंगे तो भी ये बात नहीं बैठ रही है। तो इन सब के बारे में आपको विचार जरूर करना होगा, और जब आप विचार करेंगे तो भी आपको पता चलेगा। तो मैं यहाँ पर ये विषय आपके लिए स्टडी के लिए, और ये आप इन सब विषयों के ऊपर थोड़ा सा होमवर्क करिए, just homework करके just apply your mind and take your own decision that which theory is correct, which theory is wrong, which theory is perfect, which is not perfect. आपको सोचना है। महावीर स्वामी ने बहुत अच्छी तरह से लॉजिकल बेस के साथ कर्म की थ्योरी बताई, और हम इसीलिए, और ये आपको जब यहाँ पर जैना ने अपनी तरह से कर्म थ्योरी का वीडियो तैयार कराया और फिर मैंने भेजा आपको, महेश भाई ने जरा सोच समझ करके कर्म थ्योरी के ऊपर ये सीरीज चालू की है, तो मैं समझता हूँ मेरी इंट्रोडक्शन यहाँ पूरी हो रही है। अब फ्रॉम द 12 classes, the 2 classes are already passed away. Now we will discuss the whole karma theory within only the 10 classes. Mahesh bhai, it is very difficult for me because I want 100 classes about that, then I can describe the whole karma theory. But within the very short, you see, in very limitation, you see, but I will give you in brief some ideas, you see. Just that will be the informative knowledge, but not the whole detailed knowledge, you see. Because each and every karma, if we will study in the detail, minutely, और वो फिर हम अपनी लाइफ में बरोबर ऑब्जर्व करेंगे, हम देखेंगे हमारी लाइफ में और सबकी लाइफ में देखेंगे किसके कर्म कैसे हैं। अब कर्म तो नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन वॉट एवर वी आर डूइंग एवरी एक्टिविटीज इन अवर लाइफ, वी आर द ऑब्जर्वर अवर ओन लाइफ। व्हाट टाइप ऑफ थॉट्स आर कमिंग, व्हाट टाइप ऑफ लैंग्वेज आई एम यूजिंग, what type of speech you see I am giving, and what type of all other activities what I am doing in my life, you see. So we are aware about that. I know my own nature, I know others' nature also, I can define it both the nature also. मैं अपने कर्म अपना स्वभाव मैं जानता हूँ, मैं दूसरों के, because I am living in the family, because I am living in the society, I know about others. लेकिन मैं किसके साथ कैसा बिहेवियर करूँ, so it depends on me that what type of my behavior is with other person. तो वो हम डिटेल स्टडी करेंगे, और इसमें नेक्स्ट क्लास के अंदर अब कर्म का क्लासिफिकेशन करके हम एक करके जितने कर्म हैं, मेन कर्म और उसके सब डिविजनल कर्म, उन सब की स्टडी जरूर करेंगे। और वो कर्म कैसे बनते हैं, वो कर्म कैसे रहते हैं, वो कर्म कहाँ रहते हैं, वो कर्म कैरी फॉरवर्ड क्यों होते हैं, एक लाइफ की दूसरी लाइफ में वो कर्म कैसे जाते हैं। We will discuss all the topics and points. महावीर स्वामी ने अपनी देशना के अंदर जो द्वादशांगी रची है, उसका 11वां सूत्र है विपाक सूत्र। Now today we are saying that 45 agamas. In all these 45 agamas, one of them is the Vipaka Sutra. What type of example Mahavir Swami had given in this Vipaka Sutra, and so many other agamas also. So that is what Vipak in the sense the result of the karma. आपका कौन सा कर्म आपको कैसा रिजल्ट देगा, आपका कौन सा कर्म आपको अच्छा रिजल्ट देगा कि खराब रिजल्ट देगा, आपका कौन सा कर्म आपको अकेले को रिजल्ट देगा कि फुल फैमिली को देगा,
ऑल द रिलेटिव दोज हु आर जॉइन विथ यू, वो भी सफर होंगे कि नहीं होंगे, इन सब के बारे में हमको बहुत कुछ काफी डिस्कशन भी करना पड़ेगा। एंड इफ वी विल डिस्कस ओवर इट, तो फिर हम धीरे धीरे उसमें से काफी कुछ स्टडी करके हम समझ सकेंगे तो क्या लाएगा। एंड फॉर दैट आई हैव रिटन द बुक्स आल्सो, कर्म की गति न्यारी, इट इज इन हिंदी आल्सो अवेलेबल इन ई बुक्स एंड आल्सो द गुजराती लैंग्वेज में कर्म कणी गति न्यारी એ બંને લેંગ્વેજમાં અવેલેબલ છે અને ઈ બુકમાં છે, એટલે જૈનાની ઈ બુક લાઇબ્રેરીમાં પણ આ અવેલેબલ છે। आप उसमें से लेकर के कभी भी पढ़ सकते हो, स्टडी कर सकते हो और इसके बारे में हम डिटेल आगे चलेंगे साथ। अब ये कर्म करना, कर्म बांधना, कर्म की क्रिया बंध के आधार पर सारी व्यवस्था जो है, ये पूरा कर्म शास्त्र समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन हुआ क्या है महेश भाई, एक सैटरडे के बाद दूसरे सैटरडे आज की क्लास तो आ गई, अब थर्ड क्लास तो 1 महीने के बाद आएगी। अब तब तक तो जो है कितने लोगों को कितना याद रहेगा नहीं रहेगा पता नहीं, मुझे तो साहब किसकी कितनी मेमोरी है और इतना लंबा याद रखेंगे। और फिर आप अगर नोट्स करेंगे तो आपको लंबे टाइम तक भी थोड़ी स्टडी करने का मौका मिलेगा। So my request is this type of lectures are not the common lecture, जनरल नहीं है, हम कोई हिस्टोरिकल नहीं करने जा रहे हैं। We are learning this type of कर्म फिलोसॉफी, और एक जैन धर्म की बहुत बड़ी जीवंत विद्या जिसको बोलते हैं, the live knowledge जिसको बोलते हैं, and which is useful in your day to day life, आपके प्रतिदिन के जीवन के अंदर ये उपयोगी है, बहुत उपयोगी है। आफ्टर नोइंग दिस टाइप ऑफ कर्म फिलोसॉफी, आप कितनी अवेयरनेस लाते हो रहने में, खाने में, पीने में, बोलने में, चलने में, सोसाइटी में, समाज में, फैमिली में, परिवार में, राग द्वेष में, क्लेश कसाय में, क्रोध मान में, माया लोभ में, क्लेश कसाय में, सबके अंदर आप कितना चेंजेस लाते हो और कैसा चेंजेस लाते हो कि आप बिल्कुल कर्म के संसार में रहते हुए कैसे अलिप्त रहे, कम से कम मिनिमम से मिनिमम कर्म बांध करके हम कैसा जीवन जी सकते हैं और दूसरों के साथ हमारा बिहेवियर और व्यवहार हम कैसे सुधार सकते हैं। हम अपने हाथ में अपनी बाजी रखते हैं, मारा हाथમાં છે કે મારું ભવિષ્ય મારે કેવું निर्माण करो। I myself is the creator of my own fortune. No doubt I am not the creator of the fortune of the all living beings, but for me at least for me, I myself is the creator of my own fortune. હું જ મારા ભવિષ્યનો ભાગ્ય વિધાતા છું, હું જ મારું ભવિષ્ય ઘડું છું અને હું જ મારું ભાવિ निर्माण કરું છું। तो ये तो मेरे ऊपर जुड़ा हुआ है सारा। बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत अच्छी तरह से इसको समझना भी बहुत जरूरी है। अगेन आई विल गिव यू थैंक्स टू द जैना एंड द महेश भाई, द चेयरमैन पर्सन एंड ऑल अदर पर्सन्स, और आप सब लोग आकर के जुड़ रहे हो विद दैट इंटरेस्ट। इफ यू इंटरेस्ट यू आर लिसनिंग दैट, नो डाउट इट्स अ गुड सब्जेक्ट। नाउ इफ व्हाटएवर टाइप ऑफ डाउट्स इन योर माइंड एंड इफ यू वांट टू आस्क द क्वेश्चंस, please start the discussion and ask the one by one question answer. गुरुदेव श्री जी, आधा घंटा अभी हम और आगे बढ़ सकते हैं अगर आप श्री को जरूर आधा घंटा बढ़िए और विद डिस्कशन बढ़िए, तो और मैं डिटेल थोड़ा सा क्लियर कर दूंगा लोगों के अगर क्वेश्चंस है तो उसी के साथ थोड़ा डिटेल और कर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। सो एक क्वेश्चन ये आया था सबसे पहला कि अगर रश्मि जी ने ये क्वेश्चन पूछा है, जी एक सेकंड। इफ ग्रहस हैव नो contributions, why do we hear about nakshatras being mentioned in relation to the birth of Tirthankaras? आपको तो इससे पहले ये देखना है आपको
This is the map of the whole cosmos, the 14 राजलोक का. Between that, this is the मनुष्य क्षेत्र तिरछालोक. तिरछालोक के बीच में मनुष्य क्षेत्र, और इतने से क्षेत्र के अंदर महाविद्य के सेंटर में मेरू पर्वत. अब मेरू पर्वत के सराउंडिंग जो है सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, तारा, दे आर जस्ट रोटेटिंग. अब वो जो मूविंग है उनका रोटेशन जो चल रहा है surrounded that मेरू पर्वत. They are only the ज्योतिषी देवी देवता. ज्योतिष के मतलब ज्योतिषी देवी देवता है. सूर्य भी है, चंद्र भी है, ग्रह भी है, नक्षत्र भी है, तारा भी है. अब आप संसार में यहाँ पर अब जो भी कोई जन्म लेगा तो जन्म लेते समय इनकी प्रेजेंस रहेगी कि नहीं रहेगी? किसी के भी जन्म के समय में ग्रह नक्षत्र ताराओं की प्रेजेंस रहेगी. तो तीर्थंकरों के जीवन चरित्र में महावीर स्वामी का जन्म उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ तो इसमें कोई गलत नहीं है. लेकिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में खाली महावीर स्वामी का हुआ, दूसरे और किसी का नहीं हुआ. बोलिए. उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र या जो भी ग्रह आदि है तो लाखों का जन्म हुआ है, करोड़ों लोगों का जन्म हुआ है. तो दूसरे भी सभी महावीर स्वामी बन गए क्या? नहीं. अब आप बात कहाँ की है? ग्रह आपके होने या नक्षत्र होने, अब उनकी प्रेजेंस में आपका जन्म होना, इट इज नॉट रॉन्ग, but they are giving out the happiness and miseries to the all living beings. That belief, you see how it is right or wrong. Just think over it. What is the question about that? मेरा भी जन्म हुआ है, आपका भी जन्म हुआ है. आपका जन्म हुआ तो कोई ना कोई ग्रह नक्षत्र तारा तो थे ही थे. This is the time system. अब टाइम सिस्टम चल रही है तो सूर्य नक्षत्र के हिसाब से ही चल रही है. पूरी टाइम सिस्टम विच इज टोटली डिपेंडेंट ऑन दिस ग्रह नक्षत्र, सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र के, बिकॉज ऑफ देयर रोटेशन यू से हमारे यहाँ पर टाइम की साइकिल चल रही है. अब तो हर किसी का जन्म होगा तो किसी न किसी दिन में होगा, रात में होगा, सूर्य की प्रेजेंस में, चंद्र की प्रेजेंस में, ग्रह नक्षत्र के. टू mention only that this person is born in this time. So at that time there was this type of nakshatra was present, the Chandra was present, or sun was present. That is not wrong. But we are believing that everything is doing only the grahas. They are giving us all types of happiness and misery. अब आप ये मान्यता जो है उसको कहाँ तक सत्य बताएं? तो मैंने आपको ये बताया कि यहाँ पर है, इधर देखिए. अब नीचे रहने वाले तो कौन है? सब नारकी जीव है. अब कितने नारकी नीचे है? असंख्य नारकी है. इधर कितने देवी देवता है स्वर्ग के अंदर? अब यहाँ पर आप देखेंगे देवी देवता असंख्य है. How many fishes are in the ocean? समुद्र के अंदर कितने प्राणी है, जलचर जो है. तो यहाँ पर ये सब असंख्य समुद्र, द्वीप समुद्र है. वहां पर भी अनंत जीव सृष्टि है. अब सबका कारण ग्रह नक्षत्र बताएंगे कैसे चलेगा? सबके सुख दुख की व्यवस्था ये ग्रह करते हैं. इनके ऊपर आधार है कि नहीं? अब इधर नरक है, सातों नरक में, वहां तो बिल्कुल दुख ही दुख है. वहां तो कोई सुख का नाम निशान नहीं है. अब किस ग्रह की ताकत वहां पहुंच रही है भाई साहब? हमारी धरती पर तो ग्रहों का प्रकाश आदि है, सातों नरक में तो नहीं है ना. वहां किसको कारणीभूत बताएंगे आप? स्वर्ग में कहा? ये ऊपर पूरा स्वर्ग है. अब यहाँ आप स्वर्ग के अंदर कोई ग्रहों का कुछ भी लेना देना नहीं. ग्रह तो यहाँ पर ह्यूमन क्षेत्र के अंदर है, वहां किसी को कोई लेना देना नहीं. और इससे भी जरा थोड़ा सा आगे सोच लीजिए भाई, ग्रह अगर देवी देवता के रूप में है, ज्योतिषी देव, तो उनका भी तो जन्म मरण होता है कि नहीं होता है?
वो भी तो सुखी दुखी होते हैं कि नहीं होते हैं? तो उनको कौन करेगा? उनके लिए किसकी व्यवस्था मानेंगे आप? आप फिर से सोचिए, थोड़ा और विचार करना, और किसी को पूछना समझे कि नहीं। अब कर्म व्यवस्था तो महावीर स्वामी ने ऐसी बताई कि संसार के समस्त जीवों के लिए कारणीभूत निमित्त बन रही है, और ग्रह तो यहाँ पर सिर्फ मनुष्यों के लिए निमित्त बनेंगे, बाकी संसार के समस्त जीवों के लिए कैसे बनेंगे, ये हमको सोचना है। जी जी गुरुदेव। रश्मि जी, आपको अपने क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा। आर यू सेटिस्फाइड? चैट में लिख दीजिएगा, तब तक मैं अगले। जी, आप चैट में रश्मि जी लिख दीजिएगा या हैंड रेज करिएगा अगर और भी कुछ पूछना है तो। मैं तब तक अगले क्वेश्चन की तरफ जाती हूँ। ये रिक्वेस्ट है एक्चुअली धवल के तरफ से, धवल जी की तरफ से। ही सेइंग कि सारे कर्मों को डिटेल में करना है पॉसिबल, जब अगर नहीं है तो सिर्फ क्या 1 या 2 कर्मों का ही हम डीप नॉलेज ले सकते हैं क्या इस लेक्चर सीरीज में? He just... I will try my best, but I want to say that only the limitations of the 10th class. Within only the 10th class, you see, it is not possible for me to describe in detailed form. But just in short, you see, I will give you summary. धवल जी की इच्छा अगर ज्यादा डिटेल में है तो हमारी मंडे एंड वेडनेसडे की रेगुलर क्लासेस जो चलती है, तो प्लीज यू कैन जॉइन इन दैट क्लास, यू कैन अंडरस्टैंड इन डिटेल आल्सो। जी जी गुरुदेव। अगला क्वेश्चन है कि हाउ इज दिस समवायी रिलेटेड टू द्रव्य, क्षेत्र, काल एंड भाव? प्रफुल्ल जी का क्वेश्चन है। तो ये है पांचों समवायी कारण जो है वो एक एक रीजन के रूप में है कि अब ये कौन किसके साथ जुड़ रहा है, कौन किसके साथ जुड़ रहा है। तो जब भी वो आएंगे, जुड़ेंगे, तो ये समवायी कारण जो है जब भी आएंगे तो किसी न किसी के कारण। आपने क्या सोचा है, ये मैंने बताया आपको 5 समवायी कारण। अब इन 5 समवायी कारणों के सामने आपको ये देखना है कि द्रव्य के रूप में कौन है, इधर क्षेत्र के रूप में, इधर काल के रूप में, और इधर भाव के रूप में। तो जब भी ये कारण आएंगे तो ये चारों इफेक्ट होने ही वाले। अब कोई ना कोई द्रव्य में हम भी है या दूसरा भी द्रव्य है या जड़ द्रव्य भी है, पुद्गल द्रव्य भी है, तो वो भी द्रव्य है, तो उसका भी विचार होगा। आप किस क्षेत्र में है, कहाँ पर है। नाउ यू आर इन यूएसए, नॉर्थन यूएसए, हम लोग यहाँ इंडिया में है, और कोई महाविद्य में है, कोई ऐरावत क्षेत्र में है, कोई पुष्कर द्वीप में है, कोई धातकी खंड में है, कोई किस क्षेत्र में है, कोई किस क्षेत्र में है, उन सब के ऊपर भी असर होगी। तो पांचों समवायी कारण तो सभी क्षेत्रों में है, सबके लिए है, कॉमन एंड यूनानिमसली इट इज कॉमन फॉर ऑल। अब टाइम फैक्टर भी तो सबके साथ जुड़ा है। अब टाइम फैक्टर में किस हिसाब से कैसे करेंगे। नाउ इन इंडिया इट इज द नाइट टाइम, एंड इन योर यूएस यू सी इट इज द डे टाइम। अभी हम यहाँ चौबिहार करेंगे, आप वहां पर नवकार्षी करेंगे, तो टाइम फैक्टर तो दोनों का अलग अलग चलेगा ही चलेगा, ये भी बात है। और भाव हमारे इंडिविजुअल सबके विचार तो बने हुए हैं, जिन प्रकार के जैसे भावों के अंदर हम रह रहे हैं, अपने भाव, परिणाम, इच्छाएं, विचारधाराएं जो चल रही है, तो ये सबके असर हमको बरोबर होती रहेगी। ये सब एक साथ के साथ को रिलेटेड है। जब आप इसके साथ इसको जोड़ोगे, जब आप इसको इसके साथ जोड़ोगे, तो अब इसकी असर आपको कब किस पर होगी, अब आपको इसकी असर कब किसके ऊपर रहेगी, ये पूरी सिस्टम साइकिल पूरी चल रही है। I am ready to explain this thing also 5 समवायी कारण for 1 month regularly constantly, but there are the limitation for your own time. तो ये हम जब सीखेंगे, समझेंगे, in brief, in short also, तो आपको बहुत अच्छी तरह से ये भी काम आएगा। लेकिन इन सब के अंदर पांचों समवायी में एक तरीके नहीं है। See my hand, this one finger is smaller, this finger is big elder finger,
दिस वन इज दैट, थंब इज आल्सो। तो ये बिग एंड साइज के अंदर फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन व्हेन वी कंबाइन इट ऑल द 5, तब छोटे बड़े होते हुए भी एक साथ मिल तो रहे हैं। तो पांचों समवाय कारण के अंदर भी ऐसा ही होता है। तो जैसे हमारी अंगुलियां छोटी बड़ी है, वैसे कभी टाइम छोटा फैक्टर होता है तो डेस्टिनी बड़ी होती है, डेस्टिनी का फैक्टर अगर कम होता है तो कर्म की थ्योरी बड़ी होती है। अब कर्म ज्यादा बलवान हो तो उसकी अपेक्षा एफर्ट, पुरुषार्थ भी तो है कि नहीं। कल हम महावीर को जाकर कहें कि भगवान मारा तो बता कर्म आवा छे, मारा तो कर्म बता आवा छे, तो सिमंदर स्वामी आपको कहेंगे भाई आप प्रबल पुरुषार्थ करो तो आप कर्म को भी चेंज कर सकते हो। तो ऐसा थोड़ी है कि कर्म बिल्कुल जो है बिल्कुल होगा ही होगा और चेंज नहीं होगा। लेकिन किसी किसी के अंदर बिल्कुल ऐसे निकाचित कर्म होंगे तो वो चेंजेबल भी नहीं होंगे साथ। ये दोनों तरीके से महावीर ने आपको क्लियर किया है। हम बिल्कुल बरोबर द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव सबके साथ में इसका डिस्कशन करेंगे। जी गुरुदेव, आगे बढ़ने से पहले अगर हम मंडे और वेडनेसडे को जो लेक्चर सीरीज चल रही है उसकी लिंक के बारे में सब लोग जानना चाहते हैं, तो महेश अंकल जी, कैन वी सेंड दैट लिंक टू ईमेल? जो हम ईमेल भेज रहे हैं वो वाली ईमेल में। I have already requested, the link will be posted in the chat. अच्छा ठीक है, लिंक विल बी पोस्टेड इन द चैट फॉर एवरीबॉडी। गुरुदेव श्री, अगला क्वेश्चन पीयूष जी के तरफ से है कि ये मेरू पर्वत दिखाई देता है? मेरू पर्वत विजिबल है, बट ड्यू टू द डिस्टेंस वी कांट सी इट। अब मेरू पर्वत वो कहाँ पर है, अब उसका डिस्टेंस कितना है, तो वो आप देखेंगे तो आपको ये ख्याल आएगा कि इतने, दिस इज द होल अर्थ। अब ये होल अर्थ के अंदर ये यहाँ पर है महाविदेह क्षेत्र, एंड इन द सेंटर ऑफ दिस महाविदेह क्षेत्र ये है मेरू पर्वत। एंड नाउ वी आर लिविंग हियर। ये बिल्कुल बॉटम ऑफ दिस अर्थ है, जिसको हमने यहाँ जम्बू द्वीप ऐसा नाम दिया है। और ये बृहत्तर क्षेत्र के अंदर हम अब यहाँ से ये डिस्टेंस जो है 50,000 योजन जो है, अब ये 50,000 योजन का डिस्टेंस है, तो इज इट विजिबल फॉर यू? कैन यू सी फ्रॉम दिस डिस्टेंस? इट इज नॉट पॉसिबल। આપણે તો આ ભીતની પાછળ જોઈ શકતા નથી ને 1 કિલોમીટર થી આગળ નથી જોઈ શકતા। તમારી પાસે બાયનોક્યુલર હોય કે તમારા જે કંઈ પણ હોય, there have some limitations of binocular also, लेकिन ये डिस्टेंस है। अब एक ही है कि आप उड़ के वहां तक जाओ और देख करके आ जाओ। अनविजिबल नहीं है तो विजिबल है, बट द डिस्टेंस इज द बेसिक रीजन फॉर दैट। जी गुरुदेव, अगला क्वेश्चन है हेमेंद्रा एंड चंद्रिका जी मेहता की तरफ से। वो पूछ रहे, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ 1 to 5 समवायी causes possible for effect? Sometimes only one and sometimes all 5 are there. All 5 are present in any result or effect. Well, sometimes according to the desha, kshetra, kala, power. Sometimes the time is bigger than all. Sometimes the nature is bigger than all. Sometimes your karma is more powerful than others. So this is happening already. कब आपका कौन प्रबल होता है ये देखना है। अभी आपके सबके कर्म कैसे हैं और सबके कर्म किस किस प्रकार से है, तो वहां अपने कर्म, अगर one child is taking birth, you see, but in the womb when he was making his body, he had not made the 2 eyes and he is totally blind. By birth, if he is totally blind, you say, now who can help there for him? It is not possible, you say. अब वो जन्म से ही ब्लाइंड होकर के आ रहा है, तो कोई उसके लिए क्या कर सकेगा? अब वहां क्या है, कर्म की प्राधान्यता सबसे बड़ी है। ऐसी स्थिति के अंदर साइंस भी वहां पर कुछ नहीं कर रहा है। भाई बाय बर्थ जो ब्लाइंड है उनको साइंस किसी की आंख लेके बैठा दे और वो देखता हो जाए, तो आज भी दुनिया के अंदर लाखों जो है ब्लाइंड है, लाखों।
तो ये फैक्टर चेंज होने वाला है, ये होता रहता है। कब आपका पुरुषार्थ प्रबल हो जाएगा तो आप कर्मों को गौर कर सकेंगे, कभी आपका टाइम फैक्टर किस प्रकार का बढ़ेगा तब आप कुछ कर सकेंगे। तो दोनों ही चेंजेबल है, इट इज पॉसिबल। जी जी, आई गेस अब कोई क्वेश्चन चैट में तो नहीं है, सभी के क्वेश्चंस हो चुके हैं। तो गुरुदेव श्री हम यहाँ पर विराम ले सकते हैं अगर आपकी आज्ञा है तो, या तो फिर अभी 15 मिनट का समय और है, अगर आप श्री को थोड़ा सा और समय है, अनुकूलता है। और जिसको भी पूछना है तो परमिशन दीजिए ना, आप पूछेंगे लोग। जी जी, मैं चैट बॉक्स खुला है। चैट बॉक्स नहीं हो कोई ओपन पूछ लो विदाउट राइटिंग इन द चैट बॉक्स। महाराज साहब क्लास तो चालू रख दो, सवाल नहीं है तो क्लास चालू रख दो, यही विनती है। गेस गुरुदेव श्री हेमेंद्र जी ने अपने क्वेश्चन के लिए शायद फिर से हैंड रेज किया है, मैं उनको अनम्यूट कर देती हूँ। ओके, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ हेमेंद्र जी and you can ask the question. Jai Jinendra, can you hear me? Ji, yes. Okay, the question is, the example given was कि हम तीन अंगुली से, I mean, we can write with 3 fingers. When you gave the example of 5 fingers, so 5 सवाई में, they have, all of them have to be there, because when you write, you can write only with 3 fingers. That means you are not using the 2 fingers. So my question was that all 5 have to be there in some form or the other, some proportion or other, or in some cases only one samvaya is enough to give the result or cause. I mean, the cause is there to give the effect. म्यूट पे है गुरुदेव श्री जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। I have given already the example of 5 fingers, but there are so many other different types of examples also for that. आप देखिए कैसे, अब ये समझ लीजिए कि एक आपके लिए टाइम का है, सेकंड इज फॉर नेचर, थर्ड फॉर डेस्टिनी, एंड फोर्थ इज योर कर्म, एंड फिफ्थ वन इज फॉर द एफर्ट. नाउ यू सी व्हेन द डेस्टिनी इज always more powerful than other, then your time factor, your karma factor will not do easy. For example, nowadays from our Bharata Kshetra, Airavata Kshetra, and from your American people, nobody can achieve the salvation. कोई मोक्ष में यहाँ से नहीं जा सकता है. अब ये मेरा कर्म नहीं है, ये डेस्टिनी ऑफ टाइम. लेकिन आज भी महाविदेश से रोज मोक्ष में जा रहे हैं, महाविदेश से आज रोज मोक्ष में जा रहे हैं. अब वहां पर जो है आराओं की व्यवस्था नहीं है. भरत ऐरावत क्षेत्र में आराओं की व्यवस्था है. 1 by 1 एक आरा आएगा, दूसरा आरा आएगा, तीसरा आरा आएगा, चौथा आएगा, पांचवा आएगा, छठा आएगा. लेकिन महाविदे में आराओं की व्यवस्था नहीं. इट इज ओनली ड्यू टू द डेस्टिनी ऑफ टाइम, डेस्टिनी ऑफ फील्ड. भरत क्षेत्र में आज क्यों नहीं मोक्ष में जा सकते हैं? कल आप बोलोगे नहीं आप ना कह सके तो मैं जाता. ठीक है भाई साहब, अब आपको जाना है तो आपकी मर्जी. अब शास्त्रों ने, आगमों ने और तीर्थंकरों ने ये निषेध कर दिया कि 5वें आर्य में भरत ऐरावत क्षेत्र से मोक्ष प्राप्त नहीं होता है. तो इसके अंदर ये डेस्टिनी जो है वो काल की नियति ही इस प्रकार की है. रवि के साथ गए कर सकते हो, फिर ना यहाँ पर रहने वाली है. अब जैसे छठे आरे में क्या व्यवस्था होगी, छठे आरे में कैसे लोग आपने महाराज साहब को म्यूट कर दिया है.
साहब जी, यू आर ऑन म्यूट। हाँ, साहब जी को अनम्यूट कीजिए, वो शायद आवाज़ आ रही है, वो वहीं से आ रही होगी, तो प्लीज़ अनम्यूट साहब जी। आवाज आ रही है? जी जी जी। हाँ जी। तो भरत ऐरावत महाविद्य क्षेत्र से ही क्यों मोक्ष होता है? इन्हीं क्षेत्रों में भगवान क्यों होते हैं? इन्हीं क्षेत्रों में धर्म क्यों होता है? इन्हीं क्षेत्र, तो ये डेस्टिनी है। इसके सिवाय के बहुत क्षेत्र हैं, 30 अकर्म भूमियां हैं, 56 अंतरद्वीप है, वहां पर भी लाखों करोड़ों की जनसंख्या है। अब उनका क्या करेंगे साहब? अब वो वहां पर कुछ तो जो है ऐसे क्षेत्र है, युगल रूप में ही उत्पन्न होते हैं, भाई बहन ही उत्पन्न होते हैं, वही शादी करते हैं, वही जीवन जीते हैं। हमारे यहाँ पर भी पहले दूसरे आर्य में ऐसा ही होता था। अब ये टाइम के साथ जुड़ी हुई डेस्टिनी इंपॉर्टेंट। इफ योर डेस्टिनी इज कनेक्टेड विद दैट टाइम, यू कांट चेंज इट। आज मैं तो चेंज नहीं कर सकता हूँ ना, यहाँ भरत ऐरावत क्षेत्र की व्यवस्था कोई नहीं कर सकता है। तो ये कभी डेस्टिनी, अभी मैंने एक एग्जांपल दिया आपको डेस्टिनी का, अब मैं आपको नेचर का दे दूं, अब मैं आपको कर्म की थ्योरी का दे दूं, मैं आपको एफर्ट पुरुषार्थ का दे दूं, तो सभी अलग अलग पांचों समवाय का। इसलिए द समवाय इज द मोर इम्पोर्टेंट वर्ड हियर। समवाय इन द सेंस ग्रुप ऑफ, समवाय इन द सेंस कॉम्बिनेशन ऑफ 5 these reasons behind it। तो कब कौन सा ज्यादा, किस क्षेत्र में, किस काल में, कहाँ पर, किस क्षेत्र में, किस भाव में, कहाँ किसका ज्यादा इम्पोर्टेंस रहेगा, ये आपको समझना है वहां। जी गुरुदेव श्री, क्वेश्चन सारे हो गए हैं, सभी का समाधान हो चुका है, तो हम यहाँ पर विराम ले सकते हैं। एक मिनट। हाँ, मैं पूछ रही हूँ। हाँ साहिब जी, तो ये आप 5 समवाय की बात बोले, बहुत अच्छा लगा, लेकिन अभी मैं ये पूछती हूँ कि अभी ये सचित अचित में समझो उबाला पानी पीना वो धर्म है कि अपना जैन धर्म में किसी कि, तो क्या समझे कोई किसी का ऐसा पूछा है कि ऐसा कुछ है ही नहीं कि सचित अचित है, लेकिन ये उबाला पानी को पहले तो मार देते हैं, तो कैसे चलेगा? मैं कंफ्यूजिंग में क्या है? पानी इटसेल्फ एक केंद्रीय जीव, ये बात तो ध्यान में आ गई। अब ये मैंने लिखा यहाँ पर आपको, ये पानी जो है, अब इसको सचित शब्द का उपयोग करने का कारण क्या था? इसमें इतने जीव है, इसलिए पानी सचित। चित्त मतलब जीव है, और स मतलब सहित है, जीवों सहित पानी, इसको हम कह रहे हैं सचित। अब आपको लग रहा है पहले तो हम गर्म करेंगे, बॉईल करेंगे तो मरेंगे, बात भी सही है आपकी। अब ये टाइम के साथ फैक्टर देखिए, अब सुबह में 6 बजे, और फिर ये आपके सुबह में 8 बजे, फिर वापिस ये आपके 10 बजे, फिर आपका ये 12 बजे, फिर आपका ये दोपहर को 2 बजे, फिर आपका ये 3 बजे। अब ये टाइम फैक्टर के अंदर क्या होगा? अब इसके अंदर अगर पानी में इस समय 50 लाख जो है ऐसे एक केंद्रीय जीव है, अगर ये हम एक है तो असंख्य है, मैं आपको समझाने के लिए फिगर दे रहा हूं। Suppose at the 6 a.m. there are the 50 lakhs of jivas in the 2 liter water। हमने 2 लीटर पानी लिया है, इसमें 50 लाख जीव है। अब ये 8 बजे 2 घंटे के बाद में इसके अंदर जो है सपोज कि 5 लाख माइनस हुए और 20 लाख बढ़े साहब, तो क्या करेंगे? तो 5 लाख माइनस हुए, 45 हुए, और 20 लाख उसके अंदर बढ़े, तो वापस 65 लाख हो गए। अब ये क्रम आपका चलता जाएगा साहब। अब कब जो है कम मरेंगे, कब ज्यादा जन्मेंगे, कब मरेंगे, कब ज्यादा जन्मेंगे। अब कैसा एटमॉस्फेयर, कैसी परिस्थिति, सबका अपना आयुष्य कर्म भी है। लेकिन अगर मान लेते हैं ये चलते चलते फिगर आगे बढ़ता जाए, अब आप यहाँ पर आ गए 80 लाख पर, अब आप 90 लाख पर आ गए, आप 100 करोड़ 1 करोड़ पर आ गए,
तो ये जीवों की संख्या कम ज्यादा होती रहेगी। इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते ऐसा। लेकिन मान लो कि सुबह 6 o'clock you had just boiled the 2 liters, just you want to drink the 2 liters in a whole day, so you have boiled this water at the 6 AM. अब ये बॉईल होने के समय में क्या हुआ है, 50 लाख जीवों की जीव हिंसा जरूर हुई, लेकिन ये पानी आप जो है यहाँ तक आप पीते रहेंगे। अब ये पानी कैसा हो गया है, अचित्त हो गया है। बॉईल होने के बाद अब उसमें कोई जीव नहीं रहे, ये अचित्त हो गया। तो 6 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक, मतलब आप अप टू 9 hours आप ये पानी रेनी सीजन में पीते रहेंगे, वहां तक अचित्त है। तो अब किसी में बाहर आगे कोई जीव विराजना, कोई जीव उत्पन्न ही नहीं होंगे, मरेंगे नहीं, तो पानी आपके लिए अचित्त बना हुआ है। तो आप कितने लाखों जीवों की हिंसा से बच गए। एक बार बॉईल किया आपने, ग्रस्त हैं आप, कर रहे हैं तो दोष लगा, लेकिन आपको ये देखना है कि मैं 50 लाख जीवों की हिंसा का सिर पर लेते हूँ, लेकिन 50 करोड़ से तो बच गए साहब। ये व्यवस्था है शास्त्रों के अंदर, आगमों के अंदर। तो ये रेनी सीजन के लिए आपको 9 hours का टाइम दिया। If the season will come in the winter season, you will boil the water at 6 AM, then it will be continue up to the 12 hours. If there will be the summer season, then you will boil at the 6 AM, then it will become achitta up to 15 hours. The very long time period will increase according to the time factor, according to the season also. तो टेम्परेचर जिस तरह से चेंज होगा वैसे यहाँ पर चेंज होगा। That's why when you want to use the अचित्त water, ये अचित्त है कि अब आपको इसमें कोई जीव नहीं है, आप उपयोग कर सकते हो। ये हेतु जो बताए हैं इनका ये कारण है। आपका क्वेश्चन जो है कर्म थ्योरी से अलग था, लेकिन आप ये समझिए कि इसका सबसे बड़ा हेतु ये है। और किसी को है एक क्वेश्चन आखिरी का बाबजी हम लेंगे। अगर तारे सिर्फ मनुष्य लोक में हैं, तो जो असंख्य दीपम है वो प्रकाश होता है, वहां प्रकाश होता है, असंख्य द्वीप जो है वहां पर जितना क्षेत्र फैलेगा ना। और उसका एक और पार्ट है कि हबल टेलीस्कोप से हमारी गैलेक्सी जैसी असंख्य गैलेक्सी देखी तो वो कहाँ होगी, अगर दिखी इन केस फ्यूचर में तो कहाँ होगी। क्षेत्र से अब ये सब असंख्य द्वीप समुद्र है। One is island, another is ocean. Again one is island, another is ocean. Again one is island, another ocean. तिरछा लोक के अंदर इसी तरह की व्यवस्था है। अब यहाँ पर क्या है, ये जो है दिस इज द मेरू माउंटेन हियर। अब यहाँ पर ये मेरू माउंटेन है, तो ये सन एंड मून जो है जिस तरह से ये यहाँ पर घूम रहे हैं, तो इसके बाद इसका मेरू माउंटेन यहाँ पर अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है। फिर इस तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर भी अलग है। अब यहाँ पर भी दूसरे सन एंड मून बराबर घूम रहे हैं, यहाँ पर दूसरे सन एंड मून है, यहाँ पर दूसरे सन एंड मून है। तो तिरछा लोक जो है असंख्य द्वीप समुद्रों का है, तो सबके ऊपर असंख्य तारा सूर्य चंद्र आदि घूम रहे हैं, वो रोटेशन के अंदर है। And now you are saying according to the modern science there are the different so many galaxies are there, and in one galaxy there are innumerable stars are there, you say they are moving. अब यहाँ क्या होता है, हम गिनती करते हैं 2.5 द्वीप के मनुष्य क्षेत्र की। Only in मनुष्य क्षेत्र where there are the human beings are taking birth and death cycle, but afterward there are no humans, there are only the animals, the islands and oceans, but there is no man is taking birth and death, nothing, not at all. अब वो असंख्य द्वीप समुद्र जो जितने हैं, तो वहां उनके ऊपर जो है ये सन है, मून है, ग्रह है,
नक्षत्र है, तारा है, सब रोटेशन के अंदर है, क्योंकि वो ज्योतिषी मंडल के देवी देवता है और वो भी बहुत बड़ी असंख्य की संख्या में है। अब वो सब जगह स्टेडियम स्टेबल है, बाहर जाओ तो सिर्फ ओनली 2.5 मनुष्य क्षेत्र में रोटेशन में है, बाकी सब जगह पर है। अब महेश भाई, अगर आप एक सीरीज चालू करो जैन कॉस्मोलॉजी की, और वो अप टू 1 year, if you will continue that cosmology series, then I can explain you each and every details of that, you see. Otherwise, in 110 classes of karma theory, other subject, it is not possible for me to explain everything. But there are so many subjects in Jainology, in Jainism, in Jainology, so many subjects are there. And Jain cosmology, it is also contains thousands of subjects inside the Jain cosmology. So we can discuss over it and we can just study about for a long time, 1 year or 2 years. It is, if it is possible, just think over it. जी गुरुदेव। धवल भाई, क्विकली आपका एक लास्ट क्वेश्चन पूछ लीजिए। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। बहुत शुक्रिया। आपने जो बताया कि ये कंटेंट है वो 100 लेक्चर का कंटेंट है, और थैंक यू वेरी मच, आपने इतना एफर्ट करके हमको 12 लेक्चर में आप समझा रहे हैं। मेरा ये सुझाव था कि एटलीस्ट एक कर्म अगर आप यही सीरीज में, वो मंडे वेडनेसडे हम ट्राई करेंगे अटेंड करने का, बट ये एक कर्म कोई भी लेके आप अगर पूरा डेप्थ करें, जैसे क्लासिकल म्यूजिक में एक राग लेके पूरा कर लेते हैं, भले सब राग डिटेल में ना हो पाए, तो वो ग्रेट रहेगा। बस वही मुझे रिक्वेस्ट करनी चाहिए, अगर पॉसिबल है तो। Your personal suggestion is this, because you are interested in that. लेकिन please ask to the Mahesh bhai कि those who arrange this Jain karma philosophy class, the theory of karma, if you want to understand, then we can't understand only the one karma. It is possible for me to explain the only one karma for the 12 classes, not only 12 but 1200 classes I can explain you. But as a whole, if I will explain only the Jnanavarniya karma, if I will explain only the Mohaniya karma, it will take 1 year for that. Because Shastras all are already having too much ocean of knowledge, you see. But as a general in whole, you see, all karmas are connected with each other. Mohaniya karma is also connected with the Jnanavarniya karma and Darshanavarniya karma. Jnanavarniya, Darshanavarniya, it is connected with the Antraya karma also. Due to the Mohaniya karma, Ashata Vedaniya karma is also. Due to the Mohaniya karma, Ayushya karma is also. So very first, within only the 10 or 12 classes, we must explain, understand this 12 karma theory, and then we will go afterward. Then if you want to study in the detail of each and every karma, then it will be possible for me. I think so. Mahendra bhai, the Jaina, Mahesh bhai, you see, the Jaina has already started this series. Let me complete of this 12 classes of series. Then you must think over it for different. And now from Pune in India, you see, in Pune there is Mahavir Research Foundation, and this trust has started the global classes. And the global classes, since last 1 year or 1.5 years, we are already continuing so many different classes. This Elsa Ben, she is sitting in your class, she is conducting all the classes. And every Monday and every Wednesday, the karma theory classes are already connecting continuously. Already 12 or 13 classes are already completed that. But in this series, in Jaina's classes, you see, we have started this type of topic for the limited classes. धन्यवाद, धन्यवाद। जय जिनेंद्र एवरीवन। मध्याह्न वंदना में गुरु, ये बिल्कुल ये अपना 12 क्लास जो अभी पर्यूषण के हिसाब से 10 लक्षणा के हिसाब से ये 25 सितंबर से स्टार्ट होता है। अक्टूबर में मेरे ख्याल से 4-5 क्लासेस है। तो इस तरह ये 12 क्लासेस खत्म करके फिर अगले साल से कंटिन्यू ये एवरी वीक का प्रोग्राम रखेंगे, so that everybody can take advantage and take लाभ of this ज्ञान।
जी, मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है अभी कि हमको अभी जितना ज्ञान मिल रहा है हम अभी उसको पूरा सोक करने की कोशिश करें। और डेफिनेटली महाराज साहेब का इतना अगाध ज्ञान है, उसमें से कम कुछ बूंदे वो हमारे ऊपर छिड़क रहे हैं, तो उसका नॉलेज लेके हम उसको जीवन में उतारने की कोशिश जरूर करें। केवल सुन के और उसको दोनों कान से निकाल दिया 100 सीरीज एंड उसकी बातें ना करते हुए, जितना हम सुन के और जीवन में डे टू डे लाइफ में उसको करने की कोशिश करेंगे, उतना ये सबके लिए फायदेमंद है। और गुरुदेव का जो टाइम है वो फिर सही जगह पे लगा है, ऐसा हम समझेंगे। तो ऐसी मेरी सबसे विनती है। और आज का गुरुदेव श्री का विषय ईश्वरवाद और कर्मवाद के ऊपर बहुत ही सुंदर तरीके से गुरुदेव ने हमें समझाया है, समझाने की कोशिश करी है। 2 लाइन फिर यही आखिर में होती है बाप जी की, कर्म जैसे करेंगे फल भी वैसे मिलेंगे, नीम बोने वालों को आम कैसे मिलेंगे, कर्म जैसे करेंगे। मैंने तो यही सार निकाल रहा है अभी तक के 2 प्रवचनों का, और अब काफी कुछ सीखने को मिलेगा, तो सभी लोग जरूर लाभ लेवे। और अब जैना की तरफ से गुरुदेव का बहुत 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 धन्यवाद आपके टाइम के लिए, और आप हम सभी की तरफ से आपकी सुख साता पूछते हैं और मांगलिक फरमाइएगा। अब नेक्स्ट वाली क्लास कब रहेगी फिर? जी, अगली क्लास अब पर्युषण 10 लक्षण के बाद में सितंबर को होगी, सितंबर 25 को है जी। और उस दिन गुरु वंदना का अपने को एक रिक्वेस्ट आया था जी। एल्सा शाह जी जो है वो गुरु वंदना का लाभ उन्होंने लिया है 25 सितंबर का। और उसके बाद अक्टूबर में सारे वीकेंड पे ऑलमोस्ट 9th, 16th, 23rd, 30th सभी वीकेंड्स पे प्रवचन होंगे अक्टूबर में डेफिनेटली, एंड नवंबर में भी वैसे ही है। और हमने समय थोड़ा सा बढ़ा दिया है, इसका भी ध्यान रखना है। 11 बजे से शुरू होगा ईस्टर्न टाइम, 11 बजे, और 12:30 बजे तक चलेगा लेक्चर पूरी तरह से, प्रवचन 1.5 घंटा लेक्चर्स होंगे। 1.5 घंटा जी। अब सभी लोगों से विनती है कि मंगलिक के लिए खड़े हो जाए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सर्वसाधनं देश पंचनमुखारो सर्वपापप्रणाशनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम सूर्यभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तम चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवले पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्। धर्म लाभ सबको बहुत आशीर्वाद। मध्याह्न वंदनामि महाराज साहब। धर्म लाभ। मथेन वंदामी महाराज सुख साता मेरे थैंक यू विजय भाई, थैंक यू महेश अंकल, थैंक यू जैना टीम, थैंक यू। मथेन वंदामी, प्रणाम साहेब जी। मथेन वंदामी, धन्यवाद।
मथेन वंदनामि। धन्यवाद। धन्यवाद।